Hello guys, now we will study the class 8th NCERT Social and Political Life chapter 1, the Indian Constitution. Here we will basically read about the Indian Constitution. In this chapter we are going to begin with the football, a game many of you have probably heard of or even played. Okay, so by this in first overview of this chapter we will first discuss with the football. जैसे कि आपने बहुत लोग ने probably इसके बारे में सुना होगा और प्ले किया होगा. As the name suggests, this game is that involves the player's feet. Okay, so football means a game which is played by the foot. So it is basically, as the name refers, it involves the player's feet. According to the rules of football, if the ball touches the arm of any player except the goalkeeper, then this is considered as a foul. See what it's saying कि what is the rule of to play the football, कि अगर बॉल जो है किसी भी प्लेयर के आर्म से टच होती है तो वो फाउल माना जाता है, उसे कंसिडर नहीं किया जाता है. सो इफ द प्लेयर्स स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन देयर हैंड्स एंड पासिंग इट around, then they are not playing football anymore. So what happened after that? If play, suppose second case, players start holding the football, they start holding the football in their hand and passing it. If they are not passing to the any players and they are not playing the football, so they are not considerable now. Similarly, other games such as hockey or cricket also have a rules according to which they are played. ओके, सो एज वी डिस्कस लाइक कि फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो कि बेसिकली पैर से खेला जाता है, और उसी तरह हॉकी और क्रिकेट भी ऐसे दो गेम्स हैं जो कि बेसिकली खेले जाते हैं और उन गेम के लिए कुछ ना कुछ रूल है. ईच ऑफ दिस रूल्स हेल्प्स डिफाइन द गेम एंड हेल्प्स अस डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम अनदर. ओके, क्या बोला जाता है कि हर एक ये जो रूल्स है, मीन्स हर एक ये जो गेम है ये रूल्स को डिफ़ाइन करते हैं और हमें हेल्प्स करते हैं कि हम एक दूसरे गेम को अनदर गेम से डिस्टिंग्विश करें. अगर मान लो कि हर एक गेम का रूल सेम होता तो क्या हम उसको कर पाते? नहीं. एज दिस आर द फंडामेंटल टू गेम, वी कैन ऑल्सो कॉल दैम द कंस्ट्रक्टिव रूल्स ऑफ गेम. बोला जाता है कि और जैसे कि ये फंडामेंटल गेम है, ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कंसेक्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम. लाइक जो रूल्स के गेम है बेसिकली हम उनको बोल सकते हैं. नाउ like this games, society also has a consecutive rules that make it what is and differentiate it from other kinds of society. See, just like a game, okay, we saw under the game, like game there are different kinds of game and each game have the different rules. Same the society also have a different kinds of society and they have the rules so that connect the other society. In large society in which different communities of people live together, their rulers are formulated through consensus. In a modern countries, this consensus is usually available in written form. ओके, सो व्हाट इट्स सेइंग कि इफ़ वी टॉक अबाउट द लार्ज सोसाइटी, जहाँ पे बहुत से अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं एक साथ में, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रूल्स उनके लिए बनाया जाता है एक कॉन्सेंसस के द्वारा. और जो जैसे मॉडर्न कंट्रीज़ हैं उनके अलग कॉन्सेंसस रहते हैं और हर एक के कॉन्सेंसस क्या होते हैं? रिटन फॉर्म में होते हैं. अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज़ कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सो ऐसे ये डॉक्यूमेंट जिसमें ये सारे रूल्स लिखे होते हैं उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. If we looked at the Indian Constitution in class 6 and 7th in our social and political textbook, have you ever wondered why we need a constitution or been curious about how the constitution got written or who wrote it? So क्या बोला जाता है कि अगर हम बात करें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास 6 की, ठीक है, और क्लास 7th की, तो जैसे कि हमारा सोशल और पॉलिटिकल टेक्स्ट बुक्स है, यहाँ पे हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक, अगर हम क्लास 7 टेक्स्ट बुक की बात करें तो वहाँ पे एक चैप्टर है जिसपे ये लिखा है कि वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. और तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है और क्या हमें ऐसी कभी क्यूरियसिटी हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कैसे किसने और कैसे इसे बनाया गया. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस बोथ दिस इशू एंड ऑल्सो लुक एट द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बोला जाता है कि इस चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये जो इश्यूज़ है इसको डिस्कस करेंगे और ऑल्सो इसके की फीचर्स, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके की फीचर्स को देखेंगे. ईच ऑफ दिस फीचर्स is crucial to the working of democracy in India. Some of this will be focus of a different chapter in this book. बोला जाता है कि हर एक जो फीचर्स है वो क्या है, क्रूशियल रहेंगे, ठीक है,
वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी में, अगर हम डेमोक्रेसी में काम करते हैं, सम ऑफ दिस विल बी फोकस ऑफ अ डिफरेंट चैप्टर इन दिस बुक, ठीक है। और इसमें इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इसके बारे में हम फोकस करेंगे। नाउ तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो क्या पहला टॉपिक क्या है कि कंट्री, किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड अ डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्यूरिंग अ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दिस assertion, just a minute, let me zoom it, yeah. This assertion for an independent constituent assembly formed only of Indian gained momentum and this was convened in December 1946। बोला जाता है कि 1934 में क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था उन्होंने एक डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या होता है, ये असर्शन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने का किया गया था 1946 में। द फोटो ऑन पेज 2 शोज सम मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। ये आप पिक्चर्स देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट, ये जैसे बेसिकली पार्लियामेंट का पिक्चर्स है जहाँ पे ये सारी चीज़ें को बोला जा रहा है। बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। बोला जाता है कि 1946 से लेके दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए ड्राफ्ट किया था। फ्री टू शेप देयर डेस्टिनी एट लास्ट आफ्टर 150 years of the British rule, the members of Constituent Assembly approached this task with the great idealism that the freedom struggle had helped produce। बोला जाता है कि free to shape their destiny at last, so to make the constitution after 150 years of British rule, members of Constituent Assembly they approach and with the great idealism that the freedom struggle and help to produce। बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या की, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हेल्प की। यू विल रीड मोर अबाउट द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेटर इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में और भी पढ़ेंगे। द फोटो अलॉन्ग साइड शोज प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। जो इस साइड में जो फोटोज़ हैं वो बेसिकली क्या दिखाती है कि प्राइम मिनिस्टर जो है जवाहरलाल नेहरू वो एड्रेस कर रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। टुडे मोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। बोला जाता है कि आज के टाइम में बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है। वाइल ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द कंट्रीज़ दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। बोला जाता है कि लेकिन बहुत सी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, पर ये नेसेसरी नहीं है कि जितनी भी कंट्रीज़ हो उनके पास, सबके पास डेमोक्रेटिक होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पसेस। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बेसिकली बहुत से पर्पसेस को सर्व करता है, बताता है, हमें देता है। फर्स्ट इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज अ सिटीजन एस्पायर टू लिव इन और पुट अनदर वे। और अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स us what the fundamental nature of our society is। बोला था सबसे पहले जो कुछ सर्टन्स आइडियाज़ हैं जो कि बेसिकली इट्स कंट्री में फॉर्म करते हैं, जैसे कि सिटीज़न को जीने के लिए कुछ सर्टन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है वो फंडामेंटल नेचर्स ऑफ सोसाइटी। बेसिकली जो सोसाइटी है, सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए कुछ ना कुछ फंडामेंटल थिंग्स होनी चाहिए, वो बताया गया है। अ कंट्री इज़ यूजली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल हु शेयर सर्टन्स बिलीव बट मे नॉट नेसेसरली एग्री ऑन ऑल द इशूज़। बोला जाता है कंट्री जो है बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, ठीक है, जो कि सर्टन्स शेयर करते हैं सर्टन्स बिलीव बट नेसेसरी एग्री नहीं होंगे किसी भी इशू के लिए, ठीक है। मान लो अगर कोई इशू है, जैसे कि मान लो वाटर पोल्यूशन का कोई इशू है, मान लो आपकी सोसाइटी में या आसपास के कहीं भी एरिया में वाटर पॉल्यूशन का कोई इशू है, ठीक है, तो हो सकता है कि बहुत से पीपल्स उस पर एग्री होंगे और बहुत से पीपल एग्री नहीं होंगे। नाउ अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट कंट्री टू बी गवर्न। बोला जाता है जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिकली ये हमारी हेल्प्स करता है कि हम सर्व कर सकते हैं, और इसने हमें सेट ऑफ रूल्स बताया है, प्रिंसिपल बताया है, जो कि हमारे कंट्री के हर एक पर्सन को एग्री होना चाहिए और इस बेसिस पे वर्क करना चाहिए। Now, this include not only the type of government but also
an agreement on certain ideals that they believe all the country should uphold. बोला जाता है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स हैं ये बेसिकली ये नहीं बताता है कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं, ये भी बताया जाता है कि जो कुछ आइडियल्स हैं उस पर हमें हमारी कंट्री पे बिलीव करना चाहिए और हमें से अपहोल्ड करना चाहिए. नाउ see, here is just one story, we will just go through it. The country of Nepal has witnessed several people's struggle for democracy. There was people's struggle in 1990 that established democracy that lasted for 12 years until 2002. बोला जाता है कि जो नेपाल है, ठीक है, बेसिकली नेपाल जो है वो बहुत से स्ट्रगल्स के थ्रू गई है, पीपल्स स्ट्रगल के थ्रू गई है जो उनके डेमोक्रेसी कंट्री में हुआ है. बोला जाता है कि 1990 में वहाँ पे क्या होता है कि डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया गया था और वो जो था वो सिर्फ 12 साल तक लास्टेड किया गया था अंटिल 2002 तक. In October 2002, King Yandre, citing the Maoist uprising in the countryside as his reason, began taking over different aspects of the government with the army assistance. The king then finally took over as the head of government in February 2005. बोला जाता है कि अक्टूबर 2002 में क्या हुआ था, जो किंग यांद्रे था वो साइड बहुत सी कंट्रीज के साइड में बहुत सी चीज़ों को लेके वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता और डिफरेंट एस्पेक्ट वहाँ पे गवर्नमेंट्स के शुरू हो गए, जैसे कि आर्मी असिस्टेंस के साथ. ठीक है, फाइनली क्या द किंग देन फाइनली टुक ओवर एज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन February 2005. ठीक है, ये सारी चीज़ें होने के बाद वहाँ पे जो किंग था उसने फाइनली क्या किया, टुक ओवर कर दिया 2005 फरवरी में. इन नवंबर 2005 द मोस्ट ज्वाइंट अदर पॉलिटिकल पार्टीज टू साइन 12 पॉइंट एग्रीमेंट. ठीक है, और नवंबर 2005 में क्या आप देख रहे हैं, फरवरी में 2005 में किंग ने ज्वाइन किया था और नवंबर 2005 में क्या हो कि मॉइस जो था उसने एक मतलब कि एग्रीमेंट बनाया 12 पॉइंट एग्रीमेंट का और वो अलग पार्टीज़ के साथ उसको एग्रीमेंट को साइन किया गया. दिस एग्रीमेंट सिग्नल टू द लार्ज पब्लिक एंड इमीडिएट रिटर्न टू डेमोक्रेसी एंड पीस. इन 2006 दिस पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी बिगेन गेनिंग इमेंस फोर्स. बोला जाता है कि 2006 में क्या होता है कि ये जो पीपल्स के मूवमेंट है डेमोक्रेसी को, ये बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में फोर्स में आ गया. ठीक है, इट रिपीटेडली रिफ्यूज द स्मॉल concession that the king made and finally in April 2006 the king restored the third parliament, asked the political parties to form the government. ठीक है, बोला जाता है कि ये रिपीटेडली उसको रिफ्यूज कर रहे थे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के लिए जो किंग बना रहा था और फाइनली 2006 में क्या होगा, किंग ने थर्ड पार्लियामेंट में रिस्टोर कर दिया और पॉलिटिकल पार्टीज़ को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बोला गया. नाउ in 2008 the Nepal became the democracy after abolishing the monarchy. ठीक है, फाइनली 2006-8 में क्या हुआ कि वहाँ पे मोनार्की हटी. ठीक है, आप देख सकते हो कि मोनार्ची वहाँ पे कैसे हटी. द वो फोटो शो द सीन फ्रॉम द पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन 2006. ये जो फ़ोटो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो फ़ोटो है जस्ट ये आपका एक रिप्रेजेंटेशन बता रही है. दिस फोटो इट जस्ट डिनोटिंग द मूवमेंट विच टेकन इन 2006. नाउ let us try and understand what we mean by this through two contrasting situations in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north. बोला जाता है कि चलो हम समझते हैं और ट्राई करते हैं कि इसका मतलब क्या है. ठीक है, थ्रू टू कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल. बेसिकली जो अभी हमने नेपाल की हिस्ट्री पढ़ी उस नेपाल हिस्ट्री से हम कॉन्ट्रास्ट को निकालेंगे कि बेसिक क्या कॉन्ट्रास्ट था. जो कंट्री है बॉर्डर्स करती है इंडिया ऑन द नॉर्थ साइड. अंटिल रिसेंट Nepal was a monarchy. The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, that reflected the fact that the final authority rested with the king. ठीक है, हम यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बेसिकली बात करें कि कैसे हुआ था. तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि 1990 तक मोनार्की था वहाँ पे. ठीक है, और फाइनली जो अथॉरिटी दिया गया था वो किंग को दिया गया था. और पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल fought for the several decades to establish democracy. In 2006 they finally succeeded in putting an एंड टू द पावर्स ऑफ किंग. बोला जाता है कि यहाँ पे पीपल्स का मूवमेंट हुआ था नेपाल में जिन्होंने जो बहुत से डिकेड से लड़ रहे थे और फाइनली वो 2006 में डेमोक्रेसी को फॉर्म कर पाते हैं और जो किंग का पावर्स था वो हटा पाते हैं. द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी. सी अब क्या हुआ कि यहाँ पे मोनार्की तो हट गई.
ठीक है। और जैसे ही मोनार्की हट गई तो लोगों को बेसिकली यहाँ पे क्या ज़रूरत था कि वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। द रीज़न दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिक बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कंट्री दैट दे वांट नेपाल टू बी। बोला जाता है कि रीज़न यहाँ पे ये रीज़न था कि वो नहीं चाहते थे कि जो हमारा पहले एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन था उसको हम रिफ्लेक्ट करें। रीज़न ये था कि वहाँ की जो आइडियल्स बेसिकली वो चाहते थे कि नेपाल के आइडियल्स को वो चाले, ठीक है, और वो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते थे। एज इन द गेम ऑफ द फुटबॉल इन विच चेंज इन द constitutive rules will change the game altogether. Nepal, by moving from the monarchy to democratic government, needs to change all its constitutive rulers in order to users in new society। बोला जाता है जैसे हमने देखा था कि फुटबॉल गेम में क्या होता कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स चेंज हो रहे थे, ठीक है, जैसे द गेम खेला जा रहा था, ठीक है। हम देख सकते थे कि अगर किसी ने किसी का एल्बो टच हुआ तो वहाँ पे क्या हो रहा था। सेम यहाँ पे नेपाल क्या हो रहा था, एक मोनार्की से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चेंज हो रहा था। तो अब सिंपल सी बात सोचो, जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की टाइम में चलाते हैं क्या वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में चलेगा? नहीं, तो वहाँ पे उसके चेंजेस की ज़रूरत थी। दिस इज़ वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015। इसलिए जो लोग थे नेपाल के उन्होंने एक नया संविधान बनाया 2015 के लिए। द कैप्शन अलोंगसाइड एलोबरेट्स नेपाल्स स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। बोला था जो कैप्शन है अलोंगसाइड एलोबरेट्स, ये इसने नेपाल यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है बेसिकली ये नेपाल के स्ट्रगल के बारे में बताया जा रहा है। The second important purpose of constitution is to define the nature of country's political system। और दूसरा जो दूसरा इम्पोर्टेंस है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली वो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। जस्ट एग्जांपल लाइक कि नेपाल के कंडीशन में हमने देखा कि नेपाल जो पहले था बेसिकली यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पहले किंग के द्वारा रूल किया जाता था, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो नेपाल में पहले किंग रूलर था, ठीक है, उसके और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटी। बोला जाता है फिर लेटर यहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना और पॉलिटी बना। कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग विद इन दिस सोसाइटीज़। बोला जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है वन सर्टन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के, जो कि बेसिकली गवर्न करता है डिसीजन मेकिंग के लिए सोसाइटीज़ के लिए, ठीक है। आप समझ रहे हो कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन से क्या होता है कि कुछ रूल्स और रेगुलेशन होता है, उस रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। नाउ in a democracy we choose our leader so that they can exercise power रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन बिहाफ। बोला जाता है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम चूज़ करते हैं अपने लीडर्स को और वो एक्सरसाइज करते हैं पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनके बिहाफ में। हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट दिस लीडर्स माइट मिसयूज देयर अथॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजली प्रोवाइड सेफ गार्ड अगेंस्ट दिस। बोला जाता है कि हाउएवर ऑल्दो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमेशा पॉसिबिलिटीज़ है कि ये जो लीडर्स होते हैं वो मिसयूज़ कर सकते हैं इस अथॉरिटी को, और कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा है कि प्रोवाइड्स करता है इसके सेफ गार्ड के लिए। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। बोला जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली हमें एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है, लेकिन अगर कुछ लोग इसको मिसयूज़ करते हैं, ठीक है, तो इस पर ग्रॉस इनजस्टिस होता है जो हमने क्लासरूम में डिस्कस किया गया था। देखो यहाँ पे एक जस्ट डिस्कशन है, वी विल गो थ्रू इट। सुरेश इज इन द क्लास मॉनिटर, ही इज़ अ बुली, okay, his classmates are not too fond of him. Mr. Roy, the class teacher, has to leave the classroom on some urgent work. She asks Suresh to mind the class. Suresh starts picking on Anil. See, यहाँ पे हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे सुरेश है, ठीक है, और सुरेश जो है वो क्लास मॉनिटर है और ही इज़ अ बुली। बुली मीन्स क्या होता है, वो बेसिकली दूसरे बच्चों को डोमिनेट करता है। और एक बार क्या होता है, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं वो इसको पसंद नहीं करते। रीज़न क्योंकि ये इसका नेचर बुली नेचर में है। नाउ अब क्या हुआ कि यहाँ पे मिस रॉ के बारे में पढ़ रहे हैं। मिस रॉ एक क्लास टीचर है जिनको अपना क्लासरूम अर्जेंट बेस पे छोड़ना पड़ा, तो उन्होंने बोला कि सुरेश आप क्लास को मॉनिटर करो और
सुरेश ने क्या स्टार्ट किया, अनिल एक दूसरा बच्चा था क्लास में, उसको स्टार्ट कर दिया, अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू मिस रॉ। अनिल बोलता है कि सुरेश आज मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा मैम को, बट व्हाट हैव आई डन। तो सुरेश ने बोला नहीं, सी यहाँ पे सुरेश अनिल को बोलते हैं कि आज मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा मिस रॉ को। तो अनिल बोलता है कि मैंने क्या किया है, ठीक है। नाउ when Miss Raw returns to the class, ma'am, while you were away, Anil kept talking loudly and disturbing the class. He would not listen to me. ठीक है, अब जब मैम आती हैं क्लास में बैक, तो वो जो सुरेश है वो मैम को बोलता है कि मैम जब आप क्लास में नहीं थी तो अनिल क्या था, वो बहुत तेज़ी से बात कर रहा था और क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था, ठीक है, और वो मेरी बात नहीं समझ रहा था। अनिल, यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड राइट, आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर्स 100 टाइम्स। बोला जाता है कि अनिल तुम्हें आज क्लास में बैठना पड़ेगा, ठीक है, और तुम्हें लिखना पड़ेगा 100 टाइम्स, लिखना पड़ेगा कि आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर टुडे, बट मैम आई डिड नॉट डू एनीथिंग। अनिल बोलता है मैम पर मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। In democratic society, the constitution often lays down rules that guard against this misuse of authority by our political leaders. See, जैसे कि हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल में देखा, ठीक है, कि ऊपर एग्जाम्पल में कैसे ये सारी चीज़ें हो रही है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाउ द बुली हैज़ बीन अगर in democratic society the constitution often lays down rules that guard against this misuse of authority by our political leader। बोला जाता है कि अगर हम डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा क्या करता है, एक हमारे लिए गार्ड जैसे, एक प्रोटेक्शन जैसे एक्ट करता है, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स अगर कोई मिसयूज़ करते हैं तो उनको हम वहाँ पे देख सकते हैं। इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, बोला जाता है मैनी ऑफ दिस लॉज आर कंटेन इन दिस सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। जस्ट बोला जाता है कि आप यहाँ पे इस चैप्टर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ गार्ड जैसे एक्ट कर रहा है दैट इज़ अ फंडामेंटल राइट्स। डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर्स ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस इन स्कूल फ्रॉम योर क्लास 7th बुक? ओके, कैन यू रिकॉल जब आप क्लास 7 पे थे, आपने वहाँ पे लाइक एक चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, दलित राइटर ओम प्रकाश जी के बारे में, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया था। इन दैट चैप्टर वी टॉक अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस बिकॉज ही वॉज अ दलित। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट इट कि उन्होंने कैसे डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी टू ऑल पर्सन, says that no citizen can be discriminated against on ground of religion, race, caste, gender and place of birth। बोला जाता है कि आप जो है इस चैप्टर में ये पढ़ोगे कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें राइट टू इक्वालिटी देता है, और जो सारे पर्सन्स होते हैं उनको मतलब इक्वालिटी देता है, और उनको कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। द राइट टू इक्वालिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इफ वी टॉक अबाउट द राइट ऑफ द इक्वालिटी, दिस इज द वन ऑफ द फंडामेंटल राइट विच इज गारंटीड बाय द इंडियन constitution. Now, and the important function that a constitution plays in the democracy is to ensure that the dominant group does not use its power against other less powerful people or groups. The storyboard below demonstrate one such situation in the classroom. See, what is the another features of the Indian constitution, that it plays the democracy to ensure the dominant group. Suppose, see, just we are seeing the Suresh, okay, he was the class monitor, he trying to bully to the Anil, so this was the dominance nature. So constitution also helps to reduce the dominance nature. Now yeah, the storyboard below demonstrate one such situation in the classroom. Here we will also read this story, and this denotes the dominance nature. The game period is about to begin. Okay, there was a game period in every school, we all know. Okay, so it was about to begin. Let's play basketball today for a change. No, we will play cricket. So one team member is saying let's play the basketball because we are daily playing the cricket and we are getting bored, but another team is saying no, we will play the cricket. Now the teacher
decides to settle the problem with the show of hands. Okay, teacher is saying, raise your hand who are favor for the football, basketball and for the cricket. So this was, obviously there are more boys in the class. Okay, and hey, we have won. So what it's saying, just a minute, yeah, this was the sequence actually, sorry. We always have to do what the boys want because they are in majority. So here are the some girls, and she's saying like, see, boys are the majority in the class, so obviously they will, if they will raise more hand, their hands will be raised more, so obviously we have to listen them. Ma'am should think of another way to make decisions so that our wishes are also heard. So what she is saying, she is trying to say, okay ma'am, this is not the right way, because boys always won, so this we should do the some other way. But the same thing happened, and the boys team won the result. So you can see here the dominance nature. Okay, so I hope you have understand till here what we have discussed. We have discussed here about the basic of constitution, how the constitution was formed, what is the need. Basically we are trying to read the what is the need of the constitution, why does the country need a constitution. We are reading this topic. So we have studied here many factors, what are the, why it reduces the dominance nature, it provides the equality. Okay, it's give opportunity to everyone. All these factors are there to have the constitution. So I hope you have understand this, enjoyed these classes. We'll come to the next class with the next topic.